आपके क्वेश्चन नंबर 4 में. So everyone just read question number 4 and then we will start with our solution. Question number 4. The students of a class are made to stand in rows, and now comes your first case. If three students are extra in a row, there would be one row less, and if three students are less in a row, there would be two rows more. Okay, so as I said, for word problem, three things are very important, and from those three things, the very first part is your pattern understanding, that is assumption. As you can see, the question is based on the number of rows and number of students in a row, तो आपका assumption भी वैसा ही होगा. So we'll take it as, let the number of rows be x. Let the number of rows be x. Okay, number of rows हमने x ले लिया है, and then we will assume the second variable, that is एक row में y number of students हैं. Okay, so we'll write it like this, and the number of students in a row, and the number of students in a row be y. टोटल x रोज हैं, एक रो में y बच्चे बैठे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? So total students will be equal to x into y. I hope so this assumption part is very much clear. Sanat, your expression is really very good. So clarity आपकी शक्ल से दिख रही है मुझे. So assumption part is done. Okay, now we'll move to the rest two of the parts, that is first case and second case. A request for all the Kabir students कि circles वाला जो chapter है, हम इस chapter के बाद वही chapter लेने वाले हैं, so don't worry about it. Okay, फिलहाल आप focus कीजिए इस word problem पे. So total number of students, I can say, that is xy. Now we'll move to the first case. According to the question, we'll start our first case. चलो first case read करो, and उसके accordingly we'll change the values over here. If three students are extra in a row, अभी according to our assumption एक रो में y बच्चे हमने बिठाए हैं, अब कितने बिठाने हैं? उससे तीन ज्यादा, that means y plus 3. Now in the first case, number of students in a row is equals to y plus 3. I hope so this is clear. अगर एक रो में तीन बच्चे हम ज्यादा बिठाते हैं, there would be one row less. From the assumption part, that is x rows, एक रो कम हो जाएगा. So number of rows will be एक कम, किस में से? x में से. Okay, मिल गया number of rows and एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा total number of students, and total number of students तो xy ही है. number of students change नहीं हो रहे हैं, हम उनका sitting order change कर रहे हैं. यहाँ पे तो खड़े रहने बोला है, तो हम उनका standing order change कर रहे हैं कि एक रो में कितने खड़े करवाने हैं, तो उसके accordingly rows में क्या क्या changes possible है. So now as you can see over here, number of rows multiply by एक रो में जितने बच्चे बैठे हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा total number of students, that is xy. Okay, so अब इसको हम और मल्टीप्लाई करते हैं to get this standard form. So you will get your first equation, xy plus 3x minus y minus 3 is xy. So the xy part will be cancelled from both the sides, and आपको मिल चुका है आपका पहला equation, that is 3x minus y is equals to 3. I hope so this is clear to all of you. In the same way, we will proceed for the second case. Now just read the second case. In the second case, they have mentioned if three students are less in a row, अब एक रो में तीन बच्चे कम कर दो, तो number of students in a row कितने हो जाएंगे? Number of students in a row, tell me in the chat box, how many number of students will be there in a row for second case? तीन बच्चे कम करने हैं, tell me quick. If three students are less in a row, correct, that is y minus 3. हमने assumption में लिया है कि एक रो में y बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें से तीन बच्चे कम कर दो. So now
in one row y minus 3 students will be standing. अगर ये आप करो तो रोज में क्या चेंज हो रहा है? There would be 2 rows more. So number of rows will be x plus 2. अब 2 rows बढ़ गए. Okay, number of rows आ गया. एक रो में कितने बच्चे बैठे हैं वो भी आ गया. So just multiply both of them, you will get total number of students. That is x plus 2 into y minus 3 is equals to xy. क्योंकि number of students तो उतने ही हैं, so will not change this xy. Now when you multiply this, xy cancel हो जाएगा. दूसरा equation आएगा. After solving both of them, you will get the final answer. So I want all of you to please write it down and tell me the final answer in the chat box. Quick. X and Y की वैल्यू मत देना मुझे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देना है. ओके, तो assumption पार्ट को फोकस करके आंसर भेजना ग्रुप में. I can see one answer, that is 36. Yes everyone, good. 36. Here's the correct answer is 36. Everyone do it quickly and note it down the solution, then we'll move ahead. Good. 30 seconds more to note it down. फिर मैं इसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही एक और क्वेश्चन देने वाला हूं. So be ready for it. रोज वाले ही पैटर्न के ऊपर I'm going to give you one more question. I will write the question and all of you need to solve it and tell me the final answer in the chat box. So write it down, the solution of question number 4, then I will give you the extra question similarly like question number 4. Okay, good. So we'll move ahead. Everyone just pay attention very properly and आपको इस question को फिर solve करके you need to tell the answer in the chat box. Question will be the somewhat same, खाली values में थोड़े बहुत change कर रहा हूँ. Starting same है कि students of class are made to stand in rows. Okay, again you are going to make some students stand in rows. The case is if 4 students are extra in a row, if 4 students are extra in a row, there would be 2 row less. There would be 2 row less. And if 4 students are less in a row, if 4 students are less in a row, there would be 4 rows more. There would be 4 rows more. You need to tell the total number of students. Tell me quick. Tell the total number of students. The question is 4 students are extra in a row, there would be 2 row less. If 4 students are less in a row, there would be 4 rows more. Tell me the total number of students. Yes, everyone, try karo fatafat. It's really easy. "96, that is correct answer, Anshul. Good, everyone. Keep doing. Lao fatafat answers. Okay. ऐसे ही 96 मत टाइप कर देना. Solve it and then tell me the final answer. Answer is 96, so you are already aware of it. सिर्फ try करो उस आंसर तक पहुंचने की. अगर पहुंच गए, that means you are clear with the concepts, and अगर नहीं पहुंचे हो, that means still you need a lot of practice. Yes, good.
Yes, everyone, going good. Chalo फटाफट, 1 minute more. करो फटाफट. The solution will remain similar exactly जो हमने question number 4 में किया था. आप number of rows को ले लो x and number of students in a row को ले लो y. तो total number of students हो जाएंगे xy. Okay, this is the assumption part. Now move to the first case जो मैंने लिखा हुआ है. तो उसके ऊपर से एक equation बनाओ. From the second case वहां से दूसरा equation बनाओ. Solve it, you will get the answer. Priyansh, the method will be same to same like your question number 4 जो हमने किया था वहां पे. क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एक बार आप देखिए, एग्जैक्टली वैसा ही है. आई कैन नॉट टर्न द पेज क्योंकि इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है. आपने जो सॉल्यूशन नोट डाउन किया है उसको एक बार रिफर करो. assumption part will remain exactly same. सिर्फ आपको चेंजेस करने हैं जो भी यहाँ पे आपके केसेस में हो रहे हैं वो. गुड. सो आई होप सो कि आप लोग अब क्लियर हो चुके हो इस कंसेप्ट से. सो विल मूव अहेड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So all the word problems are clear. अब छोटे मोटे questions आएंगे. That is question number 5 से start करते हैं हम. Good everyone, 96 is the correct answer. जिनके आंसर नहीं आए हैं just write down the answer, फिर बाद में आप practice कीजिएगा. Let's move to the question number 5. In a triangle ABC, you can see there are two equal to's. Okay, angle C is 3 times of angle B. That is equals to 2 times of angle A plus angle B. आपको ढूंढने हैं तीनों के तीनों एंगल. अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल है, 3 एंगल, तो आपके दिमाग में एक रिलेशन तो बहुत ही इजीली आ गया होगा कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स विल बी 180 डिग्री. पर मेन डाउट ये है कि 3 एंगल्स है, यानी कि 3 वेरिएबल्स लोगे क्या आप लोग? 3 वेरिएबल लोगे तो सॉल्व करना तो पॉसिबल ही नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम 2 वेरिएबल असाइन करेंगे एंड तीसरे को हम उन्हीं 2 के टर्म्स में चेंज कर देंगे. देखो ध्यान से, आई एम टेकिंग एंगल ए एज x, एंगल बी को मैं ले लेता हूं y. ठीक है. सो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जो डबल इक्वल टू के फॉर्म में है, इफ आई राइट इट लाइक दिस, एंगल सी विल बी 3y. एंगल बी के जगह पे मैंने y लिख दिया. तो एंगल सी को मुझे एक तीसरा वेरिएबल नहीं देना पड़ा, मैंने उसको x एंड y जो 2 assumption थे उसमें से किसी एक में चेंज कर दिया है. ओके, पे अटेंशन. एंगल ए आई हैव टेकन इट एज x, एंगल बी आई हैव टेकन y, एंगल सी आई हैव टेकन दैट इज 3y just from this relation. Okay, अब आप यहां से देखो, जब आप इन दो को कंपेयर करोगे, एंगल बी वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, so you will get 3y is equals to 2 times x plus y. Okay, by simplifying it, 3y is 2x plus 2y, so 2x minus y equal to 0. यहां से आ जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड आपका सेकंड इक्वेशन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, दैट इज x plus y plus एंगल C. ओके, एंगल A plus एंगल B plus एंगल C will be equal to 180. एंगल A लिया है x, एंगल B y, एंगल C को 3y that is equals to 180. तो x plus 4y is equals to 180. This is your second equation. And I hope so कि अब आप easily इसको solve कर सकते हो. Just keep one thing in mind, don't go for 3 variables. आपको सिर्फ 2 वेरिएबल अज्यूम करना है and then you can frame the equation and solve it. I can see some of the answers, that is 20, 40 and 120. Yes, that is correct. x आ जाएगा, y आ जाएगा, तो फिर आप एंगल C easily ढूंढ सकते हो and angle C will be equal to 3y. So after finding y, just substitute the value in this, you will get the angle C. Okay, so just note it down. अब मैं आपको इसके बाद लेकर जाने वाला हूं लास्ट वाले क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ही इजी है. Yes, you can solve it by using one variable also, if you can convert all of them in a single variable. Yes, everyone, just write it down, the solution, then we'll move ahead to the next question.
So hope so question number 5 is clear to you. ऐसे questions और भी पूछे जा सकते हैं and जो यहाँ पे relation दिया है उसके बदले they will be asking you with some another relations. आपको करना वही है, दो वेरिएबल assume कीजिए and तीसरे वाले एंगल को उन दो के टर्म्स में ही कन्वर्ट कर दो. Okay, so I hope so now it is clear. So let's move to the next part. Question number 6 हम सिर्फ orally solve करेंगे क्योंकि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है एंड ग्राफ वाला आपको आई होप सो बहुत इजीली आ जाएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ एक रफ स्केच करके दिखाऊंगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x minus y is equals to 5. एक ये इक्वेशन जो है इसका आपको ग्राफ बनाना है एंड दूसरा इक्वेशन है 3x minus y is equals to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. So first of all, just keep one thing in mind. You need to draw the graph. ग्राफ बनाने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वो आप इजीली ढूंढ सकते हो ऐसे. ठीक है. सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही दो कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लो एंड देन गो इन द ग्राफ पार्ट. इसके जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ ऐसा बनेगा. ओके, ये मैंने खाली एक आपको रफ स्केच बना के दिखाया है. यहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेंगे. आपको इसमें ढूंढना क्या था वो देखो. इन ग्राफ के वजह से दैट मींस ये दोनों स्ट्रेट लाइन एंड वाई एक्सिस के वजह से क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. एज यू कैन सी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है वाई एक्सिस एंड ये दोनों स्ट्रेट लाइन के वजह से. आपको सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखने हैं. दैट मींस वर्टाइसेस. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस. सो जो भी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्रायंगल. सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 6 आप इजीली कर सकते हो, तो मैं उसको आपके भरोसे छोड़ देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम उसके ऊपर आने वाले हैं. जो मैंने लास्ट का 30 मिनट्स रखा है वो ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए रखा है. ओके, तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 एक बार सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 एक बार आप सब लोग रीड करो एंड आई नो कि कुछ बच्चे होंगे ऐसे जिनको एक क्लिक हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है, तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए. टिल द टाइम एवरीवन रीड क्वेश्चन नंबर 8. 7 हम इसके बाद लेने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन नंबर 8. एक बहुत ही फेमिलियर वर्ड आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. यस, करेक्ट, गुड. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड. उसका डेफिनेशन एंड उसके साथ आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, दैट सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180 डिग्री. लिसन इट अगेन. Sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. So as you can see in the figure, चारों angles आपको दिए गए हैं. Okay, all the 4 angles are given to you. What you need to do is opposite angles को add करके equal to 180 लिख दो. आ जाएंगे ना दो equations. देखो यहाँ पे ध्यान से. Question number 8. सबसे पहले मैं एंगल ए एंड एंगल सी को ऐड कर देता हूं, तो उनका सम भी 180 हो जाएगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है. तो 4y plus 20 minus 4x is equals to 180 degrees. अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ओके, वैसे ही दूसरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एंगल बी एंड एंगल डी को ऐड करो. तो 3y minus 5 minus 7x plus 5 is equals to 180 डिग्री. इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. ठीक है. सो आई होप सो यू कैन इजीली फ्रेम द इक्वेशंस एंड फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. गुड. 120, 70, 60 and 110. Yes everyone, just convert them in the standard form and solve it and tell me the final answers of all the 4 angles, that is angle A, angle B, C and D. One 120, 70, 60 and 110. Correct.
120, 70, 60 and 110 is the correct answer. चलो फटाफट आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए दोनों इक्वेशन सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड. आई जस्ट वांट टू चेक योर स्पीड. आपको कितना टाइम लगता है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए? क्विकली डू इट. इसके बाद आपको एक टास्क मिलने वाला है, फटाफट करो. Good, correct answers. Just keep one thing in mind कि cyclic quadrilateral है तो opposite angles के sum 180 degree होंगे. So just apply that property, get two equations, solve it, मिल जाएंगे final answers. Yes, correct. Krishna, it's good. Good, good, everyone. Do it quickly. One more minute for all of you. We are left out with just one question, that is question number 7, जिसमें 5 questions हैं. And all the 5 questions are really very important क्योंकि ऐसे questions आपने आपके आगे exercises में देखे ही नहीं है. Okay. So we'll move ahead to the question number 7 now. I hope so कि ये question आपको समझ में आ चुका होगा. Good. So we'll move ahead to the question number 7. Question number 7 पे I want all of you कि पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास दो इक्वेशंस हैं, okay, just listen everyone, leave the question number 8 now. जिनका रह गया है वो बाद में सॉल्व कर लीजिएगा. Just note down the answers. ठीक है. So if I give you two equations, okay, by using elimination method या तो कोई भी method, okay, elimination, substitution या तो cross multiplication, आपको अभी तक max to max 2 minutes लगते होंगे to get the final answers. X and Y के आंसर तक पहुंचने के लिए max to max 2 minutes because you have practiced a lot. एंड टेक्स्ट बुक के भी अगर क्वेश्चंस आपने किए हैं तो 2 मिनट के अंदर आई थिंक सो यू कैन इजीली गेट द फाइनल आंसर्स. सो उसी चैलेंज को, आपके उस 2 मिनट्स चैलेंज को मैं वापस से एक बार और चैलेंज करता हूं. क्वेश्चन नंबर 7 में जो 5th क्वेश्चन है उसको एक बार आप सॉल्व करके मुझे दिखाइए विद इन 2 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 7 का 5th. You can go with any of the methods you like. बस मुझे 2 मिनट के अंदर आंसर लाके दो. With the entire procedure, okay? पूरे steps के साथ लेकर आना, शॉर्टकट मत डाल देना कहीं से. क्वेश्चन नंबर 7 का 5th, ओके, जिसको जो भी मेथड पसंद हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन गो बाय दैट मेथड. आई जस्ट वांट द फाइनल आंसर ऑफ x and y. नंबर्स तो बड़े हैं, सो आई नो कि कुछ लोग मल्टीप्लिकेशन या तो उसमें स्टक होंगे, बट इंक्रीज योर स्पीड, ट्राई करो. Just 1 more minute. Yes, I got one answer from Kashish, that is x is equals to 2 and y is equals to 1. Yes, good, good, good. Okay, that means the speed is really good. And I know कि आपने ये directly वाले method से elimination से तो आप directly गए नहीं हो. You might be knowing with the method जो use करना है आपको ऐसे pattern के questions में. Good. Yes, all of you, you're correct. X is equals to 2 and y is equals to 1. Chalo, so those students who are not aware,
of such kind of sums जिसमें बड़े बड़े कोफिशिएंट्स आते हैं, उनके लिए एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, ओके, 7th का 5th वन. क्वेश्चन नंबर 7th, 5th question. The equation is 152x minus 378y is equals to minus 74. And the second equation is minus 378x plus 152y is equals to minus 604. Okay. So as you can see कि कोफिशिएंट्स तो बहुत बड़े हैं एंड बड़े कोफिशिएंट्स से अगर आप एलिमिनेशन पे जाओगे तो एलिमिनेशन यानी कि किसी एक वेरिएबल का आप कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करोगे, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन को 378 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड इक्वेशन को 152 से. दैट इज रियली अ बिग नंबर एंड टू मल्टीप्लाई सच बिग नंबर्स इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी आर यूजिंग वन अनदर वे. हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड ही, पर एक छोटा सा पैटर्न समझो. पहले तो आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो. ओवर हियर यू आर गिवन विद टू इक्वेशंस. पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट देखो सेकंड इक्वेशन में y का है. जस्ट लुक टू बोथ द इक्वेशंस. x का कोफिशिएंट जो पहले इक्वेशन में है वो सेम कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में y का है. सिमिलरली फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में x का है. ओके, यू आर कमिंग विद ऑन अ पैटर्न. एक पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया. जब भी आपको ऐसे बड़े बड़े इक्वेशंस मिलेंगे कोफिशिएंट्स वाले जिसमें ऐसे ऑल्टरनेट कोफिशिएंट सेम हो, व्हाट यू विल डू, आप पहले एक बार इन इक्वेशन को ऐड करेंगे एंड एक बार सब्ट्रैक्ट. देखो स्क्रीन पे, देन यू विल बी वेरी मच क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस. ऐड बोथ द इक्वेशंस. कब ऐसा पैटर्न आप यूज करोगे? जब ऑल्टरनेटली कोफिशिएंट सेम होंगे. फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में y का होना चाहिए. फर्स्ट में जो y का कोफिशिएंट है वही सेकंड में x का होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड बोथ द इक्वेशंस. ऐड मतलब कि हम साइन चेंज नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द साइन. अब साइन आप चेंज नहीं करोगे तो आपको एज इट इज सॉल्व करना पड़ेगा. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो 152 माइनस दैट इज 378, तो आपको मिलेगा माइनस 226x. इन द सेम वे सॉल्व फॉर दिस ऑल्सो. तो यहां पर भी आपको मिलेगा माइनस 226y इज इक्वल्स टू एड दिस टू दैट इज 604 and 74. And both the signs are negative, so you will get 678. Okay, एक बार ऐड कर दिया. Now you can take minus 226 common from here. अंदर बचेगा x plus y is equals to minus 678. I can cancel this negative negative. And 2 to 6 के टेबल में 678 आता है. देखो, that is 3 times. If you multiply 2 to 6 into 3, you will get 678. So यहां से आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. जस्ट सी द ट्रांसफॉर्मेशन. कहां पे आपका कोफिशिएंट 3 डिजिट का था एंड जस्ट बाय एडिंग आपको एक और इक्वेशन मिल गया जो कि सिर्फ कोफिशिएंट 1 1 में है. इन द सेम वे जिस तरीके से आपने ऐड किया है, सिमिलरली जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है. तो नाउ सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. Subtracting, that means you will change the sign now. So 152x minus 378y is equals to minus 74. Minus 378x plus 152y is equals to minus 604. Subtraction, that means you will change the sign. So minus will become plus, plus will become minus, and this will become plus. Okay, now just add both of them. 152 plus 378, you will get 530x. In the same way, dono minus hai, so sign over here will be minus. You need to add it, so answer will again same 530y
is equals to 604 में से you need to subtract 74. So again you will be left out with 530. As you can see, all the numbers are same. I can take 530 common और मुझे मिल जाएगा x minus y is equals to 1. Yes or no? X minus y is equals to 1. Now just see both the equations. बहुत ही छोटे equations आ चुके हैं. अब आप इसको चाहो तो directly solve कर सकते हो. I'm solving over here. X plus y is 3. X minus y is 1. Cancel y. 2x is equals to 4. So y is equals to 2. Substitute the value of y in any of this equation. X plus 2 is equals to 3. So x is equals to 1. Sorry. X is equals to 2 and y will be equal to 1. So hope so now you are clear with this. बहुत easy था. सिर्फ आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. दो इक्वेशंस and coefficients should be alternately distributed. Just note it down this. It's really important. ऐसे questions आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं. So आपको बहुत ही अच्छे से इसको लिखना है and you need to remember it also. So write it down. Then we'll solve the rest of the 4 questions. Question number 1, 2, 3, 4. बस यही एक इंपॉर्टेंट था. इसके बाद तो जो ऊपर के 4 हैं उनको सिर्फ आपको नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे मैं करवाऊंगा उसी पैटर्न पे. राइट इट डाउन क्विक. जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड. एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट. ओके, ऐड करो एक बार, सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार. दो छोटे छोटे इक्वेशंस मिल जाएंगे एंड देन गो फॉर द एलिमिनेशन. Write it down everyone quickly. चलो अब इस चैप्टर के कीमती 4 क्वेश्चंस, फिर ये चैप्टर आपका पीछा छोड़ देगा. मतलब टेक्स्ट बुक ही छोड़ेगा, बाकी आरडी फिर आ जाएगा आपके पीछे. और बिकॉज आरडी में से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में मिलेंगे, आरएस में मिलेंगे. एंड इन द सेम वे कीस्टोन में से भी जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस. दैट मींस बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे उसके अंदर होंगे. सो इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द असाइनमेंट ऑफ कीस्टोन, जो कि आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है. So first of all, we'll end the textbook and then we'll move ahead. So let's start with the question number 1 of 7th one. First question of a question number 7, that is px plus qy. Px plus qy is equals to p minus q. And second equation is qx minus py is equals to p plus q. Okay. अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सॉल्व, उसमें यू हैव ऑलरेडी कम विद अ नंबर. कोफिशिएंट्स हमेशा नंबर में मिले हैं आपको. बट इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है दैट इज नॉट अ नंबर, ये एक वेरिएबल है. ओके, सॉरी, इट्स नॉट अ वेरिएबल, यू कैन कंसीडर इट एज अ कांस्टेंट ओनली. कोफिशिएंट्स जो अभी तक आपको नंबर्स मिलते थे, यहाँ पे नंबर्स के बदले सिर्फ p एंड q है. Assume it as a coefficient only and that to a constant coefficient. कोफिशिएंट की तरह ही आप इसको ट्रीट करो. एंड अब हम चलते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने. सो एवरीवन जस्ट पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन खुद से करने दूंगा सॉल्व. कौन सा होगा वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ. इट कैन बी सेकंड आल्सो, थर्ड आल्सो, फोर्थ आल्सो. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक टू द क्वेश्चन नंबर 1. एंड क्रिश, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, आफ्टर द सर्कल्स वी विल टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. It will be completed before your midterms. So we'll start with the solution of this question number 1 by the elimination method. So elimination method पे जाने से पहले we consider one thing कि एक वेरिएबल को कट करना है. मान लो मुझे x को कट करना है. यहाँ पे x का कोफिशिएंट है p. Over here the coefficient of x is q. So you need to compare both the coefficients and make them same. तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई बाय q एंड सेकंड को आई विल मल्टीप्लाई बाय p. तब जाके इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे.
चलो मल्टीप्लाई करते हैं. So PQX plus Q square Y is equals to Q times P minus Q. In the same way, multiply your second equation also. So PQX minus P square Y is equals to P times P plus Q. Now you can see both the equation the coefficient of X is same. तो अब आप जब subtraction करोगे ये cancel हो जाएगा. So we'll move to the subtraction part. Elimination में हम चलो इनको कर देते हैं subtract. PQX plus Q square Y. This is PQ minus Q square. Second equation PQ plus PQ. चलो for subtraction we need to change the sign. Okay, so इसके आप sign change कर दो and now you can solve it. एक बार मैं वापस से इसको repeat कर रहा हूँ. Try to understand it. Two equations are given to you by elimination method. हम जा रहे हैं solve करने. Elimination यानी कि आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करोगे. मैंने यहाँ पे x के कोफिशिएंट को सेम करने की ट्राई की. यहाँ पे x का कोफिशिएंट है p. Over here the coefficient of x is q. To make both of them same, यहाँ पे मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे p से. So I have multiplied first equation by q. So ये आ गया. Second equation को I have multiplied by p. So I got this equation. By subtracting both of them, now you will subtract it. So the first two terms will be cancelled out of the x. यहाँ पर देखो p square plus q square और y मैंने ले लिया है बाहर कॉमन. To the RHS part, तो pq minus q square ऊपर वाला टर्म नीचे minus and change the sign by opening the brackets. It will be, this is p square. So we need to change over here. That is minus p square minus pq. Everyone just make this changes. यहाँ पे जब multiply होगा तो ये p square plus pq हो जाएगा. So now I can cancel pq and this pq. So p square plus q square y is equals to यहाँ पे बचे हैं minus p square minus q square. I'm taking minus common. तो बच गया p square plus q square दोनों तरफ से कट. तो y की वैल्यू आ गई -1. Okay, so I hope so this is really easy. y आ चुका है. अब आप क्या करोगे? y की वैल्यू किसी में भी डाल के सॉल्व कर सकते हो to find x also. So चलो डाल देते हैं किसी में भी. We'll substitute the value of y in this equation. इसके अंदर substitute कर देते हैं. तो first के अंदर डाल देते हैं. The first equation is pqx plus q square y की वैल्यू -1. This is pq minus q square. चलो, so pqx minus q square, pq minus q square. I can cancel this minus q square from both the sides. तो बचेगा pqx is equals to pq भी कट. तो x की वैल्यू आ गई 1. So I hope so this is clear to all of you. This is really easy. आप सिर्फ एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को सेम कर दो by multiplying with whatever is the needful for both of them. Then go for either addition, either subtraction, depends on the case जिसके accordingly आपको equations दिए गए हैं. So I hope so this is clear to you everyone. Just note down the solution of first one. Then we'll move ahead. माधव इसमें जब आप अगर आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इसके लिए किया था टू रिड्यूस द कोफिशिएंट. यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं वो लेटर्स हैं. तो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको और इंक्रीज कर दोगे इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट. सो डोंट गो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वो मेथड यूज करोगे जब बड़े कोफिशिएंट्स को रिड्यूस करना हो तो. So I hope so question number 1 is clear to all of you. Now I request everyone to solve the question number 2 in the same way. जैसे हमने question number 1 किया है वैसे ही question number 2 को solve करो. Just look to the second question. x का कोफिशिएंट है a और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है b. तो फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन गो फॉर सब्ट्रैक्शन. तो मिल जाएंगे आपको आंसर्स. Yes, the signs are different, but अगर सेम भी होता तो भी वैसे पे मत जाओ.
Okay, solve for the second one and tell me the final answer of x and y. It is exactly similar to the question number 1. इसमें जो आपके आंसर्स आएंगे ये बहुत बड़े आने वाले हैं. ओके, तो आप हाँ बस ऐसा ही कुछ बड़ा बड़ा आंसर आने वाला है आपका. एवरीवन जस्ट कम विद द फाइनल आंसर. मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ आपको सो दैट यू कैन कंपेयर इट. The answer of x for the second question will be c times a minus b upon a square minus b square. And the value of y is c times a minus b plus a upon a square minus b square. Good. So ये मिलेंगे आपको आंसर्स फॉर द सेकंड क्वेश्चन. थोड़े बड़े आंसर्स हैं बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इट्स रियली इजी. So I'm giving you 1 minute more to solve this. फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पैटर्न समझा देता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फिर आप लोग सॉल्व कीजिएगा. Yes, you can solve question number 3 by your own also, but मैं एक बार उसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूं. Okay, so let's move to the question number 3 and फिर उसके बाद मैं आपको question number 4 का पैटर्न दिखा देता हूं and then we'll end this chapter. So one more achievement in your 10th standard that you can practice a lot in the chapter number 3 then. So let's have a look to the question number 3 and then we'll move to the question number 4. X upon a minus y upon b is equals to 0. Second equation is ax plus by is equals to a square plus b square. Okay. अब देखो ध्यान से यहाँ पे कोफिशिएंट्स यहाँ पे फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है बराबर. सो वी नीड टू कन्वर्ट इट एंड उसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. फर्स्ट वाले इक्वेशन को आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई. दैट मींस आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम. फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ. सो एलसीएम आएगा ए बी. सो इट विल बी बी एक्स माइनस ए वाई अपॉन ए बी जो था वो आरएचएस में जाके क्या हो जाएगा 0. जस्ट टेक एलसीएम इन द फर्स्ट इक्वेशन. यू विल गेट दिस फॉर्मेट. ये आपको इक्वेशन आ जाएगा एंड नाउ यू कैन सी. अब ये वापस से आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा एक क्वेश्चन बन चुका है. द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फर्स्ट इक्वेशन इज b and the coefficient of x in second equation is a. So by multiplying first by a and second equation by b आपको आंसर्स मिल जाएंगे x and y के. सिर्फ आपको एक स्टेप करना था इसमें. just take LCM and then it will be similarly to your question number 2. okay. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. फिर आप दोनों खाली ये बेसिक पैटर्न लिख लीजिएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इजी है पर इक्वेशन जो है वो थोड़े बड़े बड़े दिए हैं जस्ट टू मेक यू बिट. आपको थोड़ा डरा दिया जाए वैसे इक्वेशंस हैं बट डोंट गेट फियर अबाउट इट. एक छोटा सा चेंज करेंगे एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. सी द सेकंड इक्वेशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4. पहली चीज तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं. आपको 2 ब्रैकेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे. तो पहले तो आप x एंड y को सेपरेट करके उनके कोफिशिएंट के टर्म्स में लेकर आओ. सो इफ आई मल्टीप्लाई द सेकंड इक्वेशन तो ये मुझे मिलेगा a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस a प्लस बी टाइम्स y इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, बहुत ही सिंपल था. सिर्फ मैंने इसको ओपन किया ब्रैकेट्स
Now you can see first equation and second equation में y के जो कोफिशिएंट है वो पहले से ही सेम है. y के जो कोफिशिएंट है that is already same. So no need to multiply anything. Just go for subtraction. y वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और आपको x मिल जाएगा. Okay, listen it again. Second equation दो ब्रैकेट के फॉर्म में दिया था. I have separated both of them. So x का टर्म आ गया, y का टर्म आ गया. Now look to both the equations. पहले वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट एंड सेकंड वाले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दोनों सेम है. सो नो नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, जस्ट गो फॉर सब्ट्रैक्शन क्योंकि दोनों साइन पॉजिटिव थे. सब्ट्रैक्ट कर दोगे y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी. सो आई होप सो दिस इज रियली इजी. क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बहुत ही इजी थे. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के जैसे ही थे. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर 7 में फिफ्थ वाला ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. सो आई होप सो एवरीवन इज क्लियर. सो जस्ट नोट डाउन दिस टू इक्वेशंस एंड हियर इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 3 जिसमें हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज भी पूरे एंड कर ली है. इन सम ऑफ दी चैप्टर्स ऑप्शनल एक्सरसाइज दिए होंगे एंड वो सारे हम करने ही वाले हैं. कुछ क्लास के अंदर ही कर लिया जाएगा, दैट मींस चैप्टर के कंटिन्यूएशन में, एंड कुछ में हम एंड में करवाएंगे ऑप्शनल एक्सरसाइजेस. So I hope so chapter 3 is clear to you, all of you. Please let me know in the chat box. इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. Nice. So in this chapter आपने सीखा x and y की वैल्यू ढूंढना by different methods, elimination, substitution, cross multiplication, and the special case that is reduced form. अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो बराबर. एंड आफ्टर दैट वर्ड प्रॉब्लम्स के डिफरेंट केसेस, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस, एंड उसके बाद फिर 2 डिजिट नंबर, एजेस वाले क्वेश्चन, प्राइस वाले क्वेश्चंस. आफ्टर दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज एमसीक्यू आपके सिस्टम में इंप्लीमेंट हो चुका है. 20 मार्क्स जो होते हैं वो एमसीक्यू से आते हैं. इन दिस चैप्टर जो सबसे पहला टॉपिक था आपका ग्राफ वाला, जिसमें आपको वो 3 रिलेशंस दिए गए थे, पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग. उनके 3 रिलेशंस आल्सो a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 वाले, वो वाले पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है. उसमें से एमसीक्यूज आएंगे ही. सो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिए एंड बी एक्सपर्ट इन दिस चैप्टर. And if anyone have any kind of doubt, they can ask over here. Graph will do it in the class, but that is not important. अगर आप वो एक बार खुद से भी देखोगे, you can easily make the graph. Equations दिए होंगे, आप 2-3 coordinates ढूंढिए, आप ग्राफ बन जाएगा easily. But still, if you need it, we will do it in the class. For the chapter 1, we'll consider it. हम उसको भी लेंगे बीच में, because उसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है, उसको भी हम खत्म करेंगे. So I'm unmuting all of you. जिसको भी जो भी doubts हो, they can ask over here, and जिसको doubts नहीं है, they can leave this session. And in the next class, we'll start with the new chapter. So till the time, practice with this chapter. Yes. Unmute everyone. Correct. Y is equal to 2x y से जो. Anyone have any kind of doubt? They can ask over here. Sir. Yes, you have got it out. Speed is equals to distance upon time. वो speed वाले question में ये formula use next step में वो y यहाँ ले जाओ. Request rest of the students don't make noise. यपन जो आपने बोला speed is equals to distance upon time में PT करके सिखाया, that is just for your understanding purpose. Okay, आप हाँ आप उसको यूज कर सकते हो, डोंट राइट इट. ठीक है, सिर्फ टाइम को कन्वर्ट कर दो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के साथ. जस्ट कीप द वर्ड प्रॉब्लम्स इजी. मैंने वो पैटर्न आपको दिया है. एनीवन एल्स? नेक्स्ट डाउट? Okay, sir. 1 upon y please. 12 into 1 upon 2 into y. सर आपकी आवाज यूट्यूबर जैसी मल्टीप्लाई में 3y 6y
तुला ही सके ने बोला आने था, Y भी please 1 repeat upon it again. बाई 1 upon c Okay, so I don't find any kind of doubts over here. So we'll wrap up the session now. And in the next class, we'll take the chapter. Practice well. Okay, bye, sir. Bye. Hi, sir. Hi, sir. मेरा पीछे का ये पूरा पार्ट गीला हो गया रे अगर आपको x राइट आना चाहिए मतलब इक्वेशन राइट